Good morning to everyone. Today we are going to start with the revision of chapter 1 geography, that is the earth in the solar system. As we all can see that the night sky, it consists of numerous numbers of stars and moon together. हमें रात में आसमान में बहुत सारे तारे और मून दिखते हैं. So this chapter consists of those and also the sun with its 8 planets, the asteroids and meteoroids. Talking with the moon, about the moon, we can see whenever जब भी हम आसमान में पूरा चांद देखते हैं उसे हम पूर्णिमा या फुल मून कहते हैं. And whenever we see no moon, we term it as new moon or the अमावस्या. Now why these stars and moon aren't visible in the night sky? Just because of the brightness of the sun, they are not visible to us. Now talking about the celestial bodies, starting with the sun, it is made up of several number of gases. Okay, it has its own heat, then so it is termed as a star. Talking about the various patterns, they are termed as the constellations, and Ursa Major is one of them. Then the part of this Ursa Major is the Saptarishi. The Saptarishi is the part of Ursa Major, and the two stars, the two end stars of the they actually towards the pole stars. So the end two stars of the Saptarishi, they help to find out the pole star, and because of this pole star, the people in the ancient time, as I told you, they used to find the directions as it was towards the north. So the pole stars always is towards the north. Now talking about the 8 planets in the solar system. So since earth has its own heat and light, what happens, the part of the earth which is covered by the sun's light has the day, and the rest of the part of the earth away from the sun's light has the night. So we will talk about the sun. The sun, it is the center part of the solar system, our solar system, and all the planets and rest of the celestial bodies, they revolve around the sun. So what actually the sun is? The sun, it is made up of extremely hot gases, as we know, and that is why it is termed the stars, because it has its own heat and light. Then now coming to the planets, we have 8 planets: Mercury, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. Then talking about our earth, it is only planet on which life exists, because it is neither too hot nor too cold. That is why the life exists on earth. And also if we talk about the size, so the earth, it is the 5th largest planet in the solar system. Now talking about, we also term it as a blue planet because of the availability of the water on it. Now talking about the satellite, so जैसे हमारा अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, वैसे ही जो मून होता है, द मून, इट इज़ द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ विच रोटेट्स एंड रिवॉल्व्स अराउंड द earth. Now if we talk about the diameter, so moon, it is 1/4 of the earth. We can see only one part of the moon because the moon rotates and revolves at the same time. Talking about the asteroids, so it was like between the Jupiter and Mars, there is an asteroid belt. It was that there was a very big planet which broke into several pieces, which were the asteroids, and they revolve around the sun between the Jupiter and Mars orbit. तो जो एस्टेरॉइड्स होते हैं वो जुपिटर और मार्स के ऑर्बिट के बीच में ही सन को रिवॉल्व करते हैं. नाउ मीटेरॉइड्स, देयर आर सेवरल रॉक्स विच रिवॉल्व अराउंड द सन, विच आर द मीटेरॉइड्स, जिसे हम कहते हैं टूटता हुआ तारा. जो हमारी अर्थ पे जब फॉल करता है तो उसे हम कहते हैं टूटता हुआ तारा. नाउ टॉकिंग अबाउट द स्टार्स, कि जब हम आसमान में देखते हैं तो हमें बहुत सारे तारे दिखते हैं. टू दीज न्यूमरस स्टार्स वी टर्म एज द गैलेक्सीज. और जो हमारी सोलार सिस्टम है, इसकी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे गैलेक्सी. सो ऐसे ही न्यूमरस ऑफ गैलेक्सीज, दे टुगेदर कंबाइन द universe, as we have discussed in the earlier classes also, that numerous of galaxies together, they combine they make the universe, and one such galaxy named the Milky Way Akash Ganga is the galaxy of our solar system. Now starting with the latitude and longitude, हमारी जो अर्थ होती है
हमने इसके शेप के बारे में पढ़ा था, दैट फ्रॉम द पोल्स इट इज़ फ्लैटेंड एंड द सेंटर पार्ट इट्स बल्ज्ड आउट। नाउ जो अर्थ है उसको पढ़ने के लिए या तो हमें स्पेस में जाना पड़ेगा और वी कैन टेक अ ग्लोब। सो ग्लोब इट इज़ अ ईजियर पार्ट। नाउ टॉकिंग विद द अबाउट द ग्लोब, जो ग्लोब हमारी होती है वो रोटेट होती है विद द हेल्प ऑफ एन एक्सिस, एक एक्सिस जो कि टिल्टेड फॉर्म में हमारी अर्थ के थ्रू पास होती है, दैट इज़ द एक्सिस, इसे हम बोलते हैं एक्सिस। और ये एक्सिस कहाँ से कनेक्टेड होती है, हमारी नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। बट ऐसी कोई भी लाइन हमें अर्थ से पास होती हुई नहीं दिखती है, दैट इज़ वाई वी से दैट द एक्सिस एंड द रेस्ट ऑफ द लाइन्स विच वी हैव क्रिएटेड ऑन द ग्लोब आर द imaginary lines. The second imaginary line is the equator. So this equator, it divides the earth actually into two equal halves, upper the northern hemisphere and the below one is the southern hemisphere. अब क्या होता है, जो हमारी अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है। ओके, सो ग्लोब को भी हम वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करके स्टडी करते हैं। नाउ अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करें और सदर्न हेमिस्फीयर की, तो कोई भी प्लेसेस अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में, तो हम उसकी स्टडी कैसे करते हैं, हमें उसके बारे में एक्चुअल में पता कैसे चलेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सेवरल लाइंस ड्रॉ कर देते हैं नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर्स में, एंड दीज आर द ओनली लाइंस जिसे हम टर्म करते हैं द पैरेलल्स ऑफ द लैटिट्यूड। नाउ जो लाइन हमारी ऊपर नॉर्थ पार्ट में होती है उसे हम नॉर्थ लैटिट्यूड कहते हैं, और जो डाउन पार्ट में बिलो पार्ट में होती है वी टर्म इट एज द साउथ लैटिट्यूड। डिग्रीज़, नाउ डिग्रीज़ के बारे में हमने पढ़ा था कि हमारा जो इक्वेटर है वो 0 डिग्री पे लाई होता है और जो हमारा पोल होता है वो 90 डिग्री पे लाई होता है। सो अपर पोल को हम नॉर्थ पोल कहते हैं और एन से डिनोट करते हैं, और जो डाउन बिलो पार्ट होता है उसे हम 90 डिग्री साउथ कह देते हैं और उसे हम एस लेटर से डिनोट करते हैं। नाउ ऑल्सो वी कैन सी कि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ मूव करते हैं हमारी जो लैटिट्यूड्स हैं वो क्या होती हैं, साइज़ में डिफ़र करती हैं, वो स्मॉलर इन साइज़ होती जाती हैं, और सेंटर पे हमारा जो इक्वेटर होता है वो सबसे ब्रॉड होता है। नाउ टॉकिंग अबाउट द लैटिट्यूड्स, दैट देयर आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स। तो नॉर्थ पोल 90 डिग्री के अलावा हमारी जो इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड है दैट इज़ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ, और साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ। नेक्स्ट जो होती है वो आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ, और साउथ में अगर हम बात करें तो एंटार्क्टिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ। नाउ देर आर डिफरेंट हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। हमारा सन जो होता है वो एक्सट्रीमली हॉट होता है, ओके, और सन के हॉट होने की वजह से हमारे डिफरेंट जोन्स ऑफ हीट डिवाइड हुए हैं। सो जो हमारी हीट होती है सन की वो दो तरह से हमारी अर्थ पे फॉल होती है, एक तो डायरेक्टली और एक स्लैंटिंग। तो जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया है उसमें सन कैसे राइज करता है, वो सन राइज़ होके अबव द हेड आता है और फिर वो क्या होता है, वो सेट हो जाता है। सो इस एरिया, और फिर जब हम अपने आर्कटिक सर्कल की बात करेंगे तो वहाँ पे जो हमारा सन होता है वो बहुत ज़्यादा ऊपर तक राइज़ नहीं होता है, वो स्लैंटिंग वे में, मीन्स वो यू कैन से मिडवे में ही वो राइज़ होके वो क्या होता है, ईस्ट वो सेट हो जाता है। और अगर हम पोल्स की बात करें तो वहाँ जो सन होता है वो अपने होराइज़न तक भी राइज़ नहीं होता है, बहुत यू कैन से द हाइट ऑफ द सन वेयर इट राइजेज इज़ वेरी लो, एंड दैट इज़ वाई जो हमने पढ़ा था कि जो हमारी सन की रेज पड़ती हैं इन एरियाज़ पे डिफरेंटली वो स्लैंटिंग होती जाती हैं। सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया होता है जहाँ सन डायरेक्टली अबव द हेड आता है वहाँ एक्सट्रीमली हीट होता है वो एरिया, सो इसीलिए उसे हम बोलते हैं टॉरिड जोन। फिर जब हम बात करते हैं हमारे आर्कटिक सर्कल और एंटार्क्टिक सर्कल के एरिया तक की, उसे हम टर्म करते हैं टेम्परेट जोन, ओके, बिकॉज सन यहाँ स्लैंटिंग में अपनी हीट को प्रोवाइड करता है। और जब हम पोल्स की बात करते हैं तो यहाँ पे सन अपने होराइज़न से भी ऊपर क्योंकि नहीं राइज़ होता है और यहाँ बहुत लेस अमाउंट में सन हीट या सन रेज हमें मिलती हैं जिसकी वजह से बहुत कोल्ड होता है। सो इस एरिया को हम कहते हैं फ्रिजिड जोन। नाउ व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, तो जैसे हमने इक्वेटर के ही पैरेलल में हमने लाइंस ड्रॉ की थी जिसकी वजह से हमने पढ़ा था अबाउट द डिफरेंट प्लेसेस, हमने पढ़ा था कि लैटिट्यूड्स की हेल्प से हम डिफरेंट कंट्रीज़ डिफरेंट प्लेसेस को मार्क कर सकते हैं। सो इफ़ द प्लेसेस दे लाई ऑन द सेम डिग्री, ओके, सेम डिग्री लैटिट्यूड, सो हमारे लिए उस प्लेस को आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो दैट इज़ वाई वी नीड वन मोर इमेजिनरी लाइन दैट आर द लॉन्गिट्यूड्स।
longitudes. So the longitudes, they are the horizontal lines, long lines which divides the earth into two parts, that is the west and east. Now these and the parallel lines drawn to it are the meridians of the longitude. जो meridians of the longitude line हमारी होती हैं वो कैसी होती हैं, सेमी सर्कल के शेप में होती हैं, और जब जैसे ये लाइंस हमारी पोल्स की तरफ मूव करती हैं सो ये एक पॉइंट पे कलेक्ट आउट होती रहती है. सो ये ब्रॉडर होती हैं इक्वेटर के पास, बट हमारी जैसे ये पोल्स की तरफ जाती हैं ये क्या होती हैं, एक पॉइंट पे ये शिफ्ट होती हैं. जैसे कि लैटिट्यूड्स देख सकते हैं हमारे कि लैटिट्यूड्स इक्वेटर पे ब्रॉडर रहता है और पोल्स पे क्या होता है, शॉर्टर होता जाता है. नाउ अब हम अगर डिसाइड की बात करें कि इस मेन लाइन को हम कहाँ डिसाइड करेंगे, इक्वेटर को तो हमने 0 डिग्री पे डिसाइड किया, तो ऐसे ही इसे हम लॉन्गिट्यूड्स को हम प्राइम मेरिडियन दैट इज़ 0 डिग्री पे डिसाइड करते हैं, जहाँ से रेस्ट जो भी लाइंस, जो भी हमारी मेरिडियंस ईस्ट साइड में होंगी उन्हें हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, और जो भी हमारी लाइंस वेस्टर्न की तरफ ड्रॉ होती है मेरिडियंस उसे हम वेस्ट कहते हैं. और दे आर बीइंग डिवाइडेड इनटू 180 डिफरेंट 180 लाइंस. जो हमारी 180 ईस्ट और वेस्ट की लॉन्गिट्यूड होती है दे आर द सेम, दे ओवरलैप ईच अदर. और 0 डिग्री मेरिडियन और 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट दे लाई ऑन द सेम लाइन, वो एक सेम सर्कल पे लाई करती है, जैसा कि मैंने जब आपको बॉल के थ्रू एग्जाम्पल दिया था. सो हमारी जो प्राइम मेरिडियन है ये हमारे अर्थ को 2 डिफरेंट हेमिस्फीयर्स में डिवाइड कर देती है, हमने पढ़ा अभी. जब ये लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स ड्रॉ हो जाती हैं तो जो एक स्क्वायर छोटा सा फॉर्म होता है उसे हम ग्रिड कहते हैं. एंड विद दिस ग्रिड वी कैन स्टडी अबाउट अ प्लेस. Understood everyone till here? Now what are the longitude and time? अब अगर हम किसी भी प्लेस की बात करें, अगर हम लोकल टाइम के लिए जानना चाहें तो जब सन हमारा ईस्ट की तरफ रहेगा सो वी कैन प्रेफर कि अभी मॉर्निंग टाइम है. जब सन एकदम हेड पे रहेगा तो आफ्टरनून, और जब सन हमारा वेस्ट की तरफ रहेगा सो वी कैन डिटरमाइन कि अब शाम हो रही है. बट लोकल टाइम इज़ नॉट इनफ. ओके, इसे तो हम लोकल टाइम कहते हैं बट इट इज़ नॉट इनफ, बिकॉज क्या होता है हमारा अर्थ वेस्ट टू ईस्ट मूव करता है. ओके, सो इन दिस रोटेशन जो सन रेज होती हैं वो पहले ईस्टर्न पार्ट पे आती हैं, फिर प्राइम मेरिडियन पे जाती हैं और फिर वेस्टर्न पार्ट पे आती हैं. तो सपोज़ अगर हम प्राइम मेरिडियन से ईस्टर्न हेमिस्फीयर पे मूव करेंगे तो टाइम बढ़ेगा और वेस्टर्न हेमिस्फीयर पे टाइम घटेगा. अब जो हमारी अर्थ होती है वो पूरा 360 डिग्री रोटेट करती है. ओके, क्योंकि वो पूरा एक रोटेशन पूरा करती है. इट मीन्स दैट 24 आवर्स अगर वो 360 डिग्री कवर करती हैं तो वो 1 घंटे में 15 डिग्री लैटिट्यूड 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स कवर करती है, और 1 डिग्री 4 मिनट्स में वो 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड क्या करती है, कवर करती है. सो अगर हम टाइम कंपैरिजन की बात करें तो अगर ग्रीनविच पे हमारा 12 AM टाइम है, 12 नून टाइम है, तो हमारा अगर हम ईस्टर्न पार्ट की बात करें 15 डिग्री ईस्ट तो वहाँ पे 1 PM होगा, और अगर हम वेस्टर्न की बात करें तो वहाँ पे 15 डिग्री वेस्ट पे हमारा 11 बजेगा. पूरे 1 घंटे आगे हमारे ईस्टर्न हेमिस्फीयर में और 1 घंटा पीछे हमारे वेस्टर्न हेमिस्फीयर में. 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड होगा, तो अगर डिग्री पे हमारा 12 मिडनाइट होगा. ओके, नाउ why do we need the standard time? Why do we have the standard times? लोकल टाइम से भी हम खुश रह सकते हैं. ओके, कि हम सन को देख के पता कर लें कि एक्चुअल टाइम क्या हो रहा है. बट व्हाट इज़ द एक्चुअल नीड ऑफ द स्टैंडर्ड टाइम? दिस इज़ जस्ट बिकॉज अगर हम बात करें अपने इंडिया की, फॉर टेकिंग एग्जाम्पल, तो हमारा जो इंडिया है गुजरात, द वेस्टर्न पार्ट एंड अरुणाचल प्रदेश ईस्टर्न पार्ट, तो ये 68 डिग्री ईस्ट से 97 डिग्री ईस्ट तक का, दैट इज़ 29 डिग्री एक्चुअली 30 डिग्री तक का डिफरेंस, जो हम 2 आवर्स का डिफरेंस ले सकते हैं. 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड मतलब 2 आवर्स का डिफरेंस. सो अगर हम टाइम की बात करें तो अगर गुजरात का टाइम दोपहर के 2 बजे हैं, गुजरात में अगर हमारी टाइमिंग दोपहर के 2 बजे हैं तो अरुणाचल प्रदेश की टाइमिंग 4 बजे होगी. ओके, सो बहुत ज़्यादा क्यूस हो जाएगा कि रेलवे, अगर हम रेलवेज़ की बात करें ट्रैवलिंग के पर्पज़ से, तो टाइम्स बहुत डिफ़र करेगा. इसीलिए हमने एक स्टैंडर्ड टाइम अपने इंडिया का चूज़ किया है, दैट इज़ 82.5 डिग्री ईस्ट. ये हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन है जिसके बेसिस पे हम अपना टाइम डिसाइड करते हैं, और ये प्राइम मेरिडियन से 5 आवर्स
30 मिनट, 5.5 घंटे का डिफरेंस करता है। ओके, सो अगर हमारा प्राइम मेरिडियन का जो टाइम है वो कितना बज रहा है, 12 बज रहा है प्राइम मेरिडियन पे, तो हमारे इंडिया में उस समय शाम के 5:30 बजेंगे। 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स का डिफरेंस हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है उसमें होता है, और इसे ही हम कहते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। सो और क्या होता है, जो हमारी अर्थ है उस पर और भी जितने भी कंट्रीज़ हैं क्या होती हैं, कुछ कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा एक्सपैंडेड होती हैं लॉन्गिट्यूड्स में। तो जैसे हमारे इंडिया का सिर्फ एक स्टैंडर्ड टाइम है और कंट्रीज़ के सेवरल स्टैंडर्ड टाइम्स होते हैं। ओके, आई होप कि आपको ये सारे टॉपिक्स समझ में आए होंगे। सो प्रिपेयर फॉर योर टेस्ट वेरी वेल। थैंक यू क्लास।